اور فریق مخالف کی طرف سے جو صدر مجلس مناظرہ ہیں ان کو مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ قاری احمد حسن صاحب مستند عالم نہیں ہیں، اس لیے ان کو متکلم کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ مولانا نور العین صاحب مصباحی۔ تو جب آپ نے بھیجا ہے تو آپ یہ اعتراف کیجئے کہ میں اس غلطی کا ارتکاب کر چکا ہوں، مناظرہ عالمانہ انداز پر ہوگا، مجھے اس کا آپ جواب دیجئے۔ آپ نے جب خود اعتراف کیا کہ ان اسناد کی بنیاد پر سامنے بیٹھا ہوا فریق مخالف اور متکلم مخالف، آپ پڑھیں سنجیدگی سے پڑھیں۔ میں بالکل سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ تحمل کے ساتھ، بالکل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، وقار و متانت و سنجیدگی کے ساتھ، کیا گھبرانے کی نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، فقیر نہ کبھی گھبراتا ہے۔ میں آہستہ تاکہ آواز چوتھی جو شرط آپ نے لکھی تھی ہم نے نہیں لکھی، یہ آپ کی طرف سے آئی ہے۔ چوتھی جو بات آپ نے لکھی ہے، سنیے، کچھ مجھے بھی بولنے کی اجازت دیجیے۔ ہم شرط طے کرنے آئے ہیں، تو اب شرط طے کرنا مطلب اس سے پہلے کوئی شرط نہیں ہے، شرط طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مصباحی صاحب، میں نے آپ کو لفظ شرائط مناظرہ علماء ہی طے کریں گے، یہ میں نے آپ کو کتنی بار بتا دیا، آپ بار بار الفاظ کو سن کر آپ کو ہونا معلوم، ہمارا وقت چل رہا ہے۔ اچھا ایسا ہے، ایک منٹ مصباحی صاحب، اگر مستند عالم کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، ایک منٹ اور ایک منٹ، ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، بس ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت، کہ اگر اس شرط کو اہمیت ان حضرات نے نہ دی ہوتی تو یہ خود ہی بیٹھ کر کے طے کر لیتے۔ یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، ان کا ٹائم لے کر کے، ان کی تعلیم کا نقصان کر کے کیوں یہاں پر بلایا جاتا ہے؟ کیا یہ لوگ خود نہیں اس کو طے کر سکتے تھے؟ یہ اتنی اہم شرط ہے کہ جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ہال بک کیا، لاکھوں روپے خرچ کیے، علماء کو بلایا، اسی شرط کی بنیاد پر کہ ہم کو مستند عالم چاہیے۔ یہ اتنی اہم اور بنیادی شرط ہے، چونکہ بحث کرنے کے لیے تو آپ لوگ روز آنا ہے، اگر آپس میں آپ لوگوں کو بحث کرنی ہوتی تو ہم کو کیوں بلاتے؟ آپ نے ہم کو بلایا کیا سمجھ کر کے؟ ایک مستند عالم سمجھ کر کے۔ تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اب تک ایک غیر مستند شخص سے ہوئی، ہمارا وقت 4 گھنٹے ضائع ہوا۔ اس لیے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ جو غلطی اب تک ہو گئی اس کو نظر انداز کیا جائے، اور پھر آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بحیثیت متکلم تو آپ کے صدر آپ کو متعین کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تک جن سے گفتگو ہوئی وہ مستند عالم نہیں ہے، اس لیے بحث میں ان کی شرکت نہیں ہوگی، ہم ان کی جگہ پر آپ کو متعین کرتے ہیں۔ آپ اس کو بول دیں، اس کے بعد میں گفتگو شروع ہو جائے۔ صدر بول جی دماغ صحیح ہو گیا۔ آپ تو جب لکھا تھا، جب ہی انہوں نے مجھ کو طلب کیا ہے، میرا آنا مطلب اس بات کی تھا کہ ہاں وہ جو ہے اپنی اس بات کو مانتے ہوئے انہوں نے، اب رہی یہ بات کہ اگر آپ متکلم متعین ہو گئے؟ جی متکلم آپ متعین ہو گئے؟ نہیں ذرا بول دیجئے نا اس کو۔ نہیں ایک منٹ، میں نے صدر صاحب سے گزارش کی، کون صاحب آپ آپ سے گزارش ہے میری، آپ نہیں سب لوگ اس کو سن لیں تاکہ وہ آن ریکارڈ رہے، اور ہماری طرف کوئی یہ نہ کہہ پائے زبردستی نسبت کرتے ہوئے کہ آپ نے زبردستی کر کے ایسا کیا۔ آپس کی رضامندی سے بات ہوگی نا، دونوں لوگ راضی ہو کر کے جو بات کریں۔ تو صدر مجلس آپ بتاتے ہیں۔ ابھی فی الحال شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے میں متکلم کی حیثیت سے ہوں، آئندہ جو مناظرہ ہوگا اس کے لیے چونکہ ابھی میری مصروفیات کیا ہیں، کب ہوگا کچھ تاریخ مجھے پتہ نہیں، تو میں اپنے کو نہیں پیش کر سکتا کہ آئندہ مناظرہ کے لیے بھی میں ہی متکلم۔ صاف لفظوں میں ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے شرائط مناظرہ کے تعلق سے، اس کے لیے میں متکلم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی
हाँ। तो अब ये आपने इसका एतराज कर लिया, ये गलती किया भाई, शरायतें आप कह रहे इसकी शर्त थी, शर्त हम तय करने बैठे हैं, पहले से अगर शर्त होती तो तय करने की जरूरत ही नहीं होती, पहले से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उसमें जिन शरायत तय करने के लिए क्या है, आलिम तय करेंगे, ये शर्त मुस्तनद उसमें जिक्र नहीं है, शरायत तो मैंने वाकई नहीं पढ़ा, नहीं, जब तहरीर की उनके नज़दीक हैसियत नहीं है तो आप दोनों की बात तो हुई है। नहीं, आप कह लिए ना उनसे सदर साहब से कि मुस्तनद आलिम की शर्त लगी थी कि नहीं, ज़बानी। शफी भाई आपके दरमियान और सज्जाद भाई के दरमियान ये बात हुई थी ना कि दोनों तरफ के मुस्तनद आलिम दीन बात करेंगे, बात खत्म हो गई, अब उस पर बात नहीं होगी, उनसे कहिए उस पर बात ना करें। मुझे कहने क्या जरूरत, देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं अपने मुंह से कहूँ मैं आलिम हूँ, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं फुला हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, तो तय कर लीजिए इसमें दिया हुआ है ना। हाँ, वो नंबर बता, हमारे पास तो एक आलिम है, कौन सा नंबर पढ़ना है? आप बोलेंगे तो हो जाएगा, 4 नंबर पे तो सदर का नाम है, सदर की बात है। नहीं, आप कहिए कि इनको हटाया जा रहा है इस वजह से। हर फरीक अपने अपने सदर मुनाजिर खुद इंतखाब करेगा। मैं उनसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, तो फिर एक मिनट सुन लीजिए, कुछ मुझे भी आप अपना देखिए ना, उसको सुना नहीं, कोई टाइम मुझे नहीं दिया जा रहा है, अब देख रहे इतनी देर से, मैं कह रहा हूँ वो जरा मैं भी पढ़ लूँ, मैंने उसको भी नहीं पढ़ा है कि वहाँ भी मुस्तनद की कैद है। अब अगर वाकई ये खैर खाही अखलास पे मबनी होता तो शायद ये बहस इतनी तूल न पकड़ते कि चलो ठीक है, आप आगे चलिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको भी क्या चाहिए मुझे वो जो जिक्र कर रहे हैं कि शरायत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम का होना ज़रूरी है, वो कहाँ पे कह दीजिए दोनों की, नहीं कह, उसमें आलिम लिखा है, कह दीजिए दोनों आदमी की बात हुई है मुस्तनद आलिम की। हाँ देखिए, शरायत मुनाजरा और वक्त मुनाजरा तरफ़ैन के उलमा ही तय करेंगे, इसमें मुस्तनद का जिक्र नहीं है, यही मैं कह रहा था। क्यों नहीं, जब उनको कुरान सुन्नत मुस्तनद हम नहीं कह सकते। अरबिक डिप्लोमे की बुनियाद पर हाफिज़ कुरान तो बहुत सारे हैं ना, हिफ्ज़ कुरान मिसबाही साहब देखिए, मैंने पहले कह दिया अरबी बदीही चीजों का इनकार नहीं किया जाता है। आप अभी बोलेंगे, मेरा भी वक्त लिया है, मुझे वक्त दे करके फिर बोलना शुरू कर देते हैं, अब इसको खत्म मबहस न कहें तो फिर क्या कहें, ब्याज को उलझाना, आप फरीक़े मुखालिफ को टाइम नहीं देंगे तो फिर वो क्या, कितनी देर से कितनी बार टाइम दिया, फिर आपने टाइम ले लिया मेरा, मेरा आपके खुद कितनी देर से कह रहे हैं, तो थोड़ा खुद मैं ये कह रहा था इसमें मुस्तनद नहीं है, इसमें मुस्तनद नहीं है, तो चलिए मुतकल्लिम को कहिए कि ठीक है, पहले ये वजाहत कर दें कि पहले वो मुतकल्लिम था, उसके पास सनद नहीं थी, तो अब मैं मुतकल्लिम के मुजाहिदीन हैं, कई सालों से जो है दूसरे तफरीके के लोगों के साथ ये सब मुनाजिरा करते हुए, फाइट करते हुए आए, बहुत सारी हिंदुस्तान की बैंगलोर की मस्जिदें बचाकर इन्होंने सबने, हमने 4-4 लोगों ने मिलकर तय किया, 1 से 10 रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमें रिकॉर्डिंग में बोला शरायत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम चाहिए, इसमें नहीं, वहाँ पर भी इसमें मुस्तनद नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास, आपने लफ्ज़ मुस्तनद कहा कि मुस्तनद नहीं है, आलिम तो है ना? हाँ आलिम, हाँ। तो क्या आप अरबी डिप्लोमा की बुनियाद पर किसी को आलिम मानते हैं? नहीं, अरबी नहीं मानते हैं, तो शफी साहब देखिए अभी इख्तिलाफ हो गया, मैं आपसे कह रहा हूं, अरबी डिप्लोमा की बिना पर हम मुस्तनद आलिम नहीं मानते हैं, मतलब ये है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आलिम तो हो गया ना, मुस्तनद नहीं तो मानते, मुस्तनद आलिम नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुस्तनद नहीं है, मसलन किसी ने अल-एदादिया ता सामिना फजीलत तक पूरी तालीम हासिल किया है, किसी वजह से वो फाइनल एग्जाम न दे करके सनद नहीं हासिल कर पाया, तो हम उसको आलिम कह सकते हैं या नहीं? अगर तालीम उसने हासिल की है और सनद नहीं ले पाया है, ठीक है, सनद नहीं पाया, लेकिन उसकी इल्मी सलाहियत तो बता देगी ना। हाँ, तो
तो वही अब कम से कम मौका दीजिए, वो इजहार करेंगे, उस मौके पर आपको कहने का हक है कि आप नहीं हैं। तो अभी कहाँ मौका है? अगर जिसने 9 साल पढ़ाई की है। दूसरी बात ये है शफी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐलान कीजिए। जी शफी साहब, सदर साहब जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे फरीक़े मुखालिफ के मुआविन मिसबाही साहब कुल्ला ने ये एतराफ़ कर लिया है कि मैं मुतकल्लिम रहूंगा। आप ये कहें मुफ्ती साहब, आप मान लिया अभी फिलहाल के लिए मुतकल्लिम रहूंगा, अभी आपने कहा शराइत तय करने के लिए मैं फिलहाल मुतकल्लिम। हाँ, शराइत की बात कर रहा हूँ। देखिए करीन है, हालिया लफ्ज़िया आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा मिसबाही साहब। नहीं, चूंकि चाहिए वो मुझे भी आता है। हम हमारे मसरूफियात हैं, हम इन्होंने अपने मुतकल्लिम होने का ऐलान किया है। अब आप ये ऐलान कीजिए कि सामने वाला आलिम नहीं है, इसलिए मैं अपना मुतकल्लिम चेंज कर रहा हूँ। बस इतना बोलिए। आप इतना मुस्तनद आलिम नहीं है। माइक दीजिए उनको। आलिम है, मुस्तनद नहीं। अगर आलिम की कैद पे बात होगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी, फिर हम आलिम की तारीफ भी पूछ सकते हैं, फिर मुस्तनद गैर मुस्तनद की वजाहत भी आपसे करवा लेंगे, क्योंकि आप किसको बोल माइक दीजिए उनको। शफी भाई को माइक दीजिए ना। पूरा डिस्कशन एक आदमी बोले। क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, सनद होने ना होने की वजह से होने की कारी अहमद हसन साहब इस्माइल साहब को बनाते हैं और उनको हटा रहे हैं। नूरुल ऐन मिसबाही, कारी अहमद हसन अरे हटा नहीं मुआविन आलिम। ये बोलिए आलिम की सनद नहीं होने की वजह से आप मुस्तनद का मतलब ही होता है सनद हासिल किया हुआ। कारी अहमद हसन देखो साहब लफ्ज़ों में उलझा रहे हैं, बहुत उलझा रहे हैं भाई। मुस्तनद आलिम न होने का मतलब ये सनद याफ्ता न होने की वजह से। अब कोई सनद न हो, इतना भी कोई वो करता है क्या? पहले इकरार करो कि 5 घंटे आपने बर्बाद किए हैं। हकीकत ये आपने ज़ाय किए हैं। बुजुर्गों मोहतरम, हम आपका अदब कहते हैं। अगर यही फैसला करना होता तो मैं आपके साथ कर सकता था। अगर यही फैसला करना होता तो बिलाल में जब बात हुई थी तो मैं आपके साथ कर सकता था, नहीं किया। क्यों? ये बात होने की वजह से। अब आपका दूसरा आलिम भी जो है वो आलिम नहीं है। आलिम में दीन है मगर सनद नहीं है। आलिम में दीन है मगर सनद नहीं है। सदर साहब लाई नहीं पा रहे, ये क्या बात है? सनद दिला देंगे, अगले महीने में सनद दिला देंगे। जब दिलाइएगा आप तो मुफ्ती जब दिलाएंगे उस ठीक है, दिलाने के बाद इस आलिम में दीन है मगर सनद नहीं है। मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब खत्म कर डालेंगे बात। छोड़ो, बोल डाले होगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिला देता आपको क्या करना है। चलो दौलत भाई फिर से गुफ्तगू शुरू हो। आप शुरू आप शुरू करो। अपना वक्त चला है? अपना वक्त हो गया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, 11 बजे शराइत मुनाजरा तय करने के लिए हाल में आना तय हुआ था। हम अहले सुन्नत व जमात के अफराद अपने वक्त मुकर्रर पर हाल में मौजूद हो गए और तकरीबन 55 मिनट के बाद फ़रीक़ मुखालिफ यहाँ पर मौजूद हुए। इस तरह से हमारा तकरीबन 1 घंटा पहले ज़ाय किया गया। फिर गुफ्तगू शुरू हुई तो इस वक्त 3 बज रहे हैं और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जो सदर मजलिस मुनाजरा हैं उनको मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि कारी अहमद हसन साहब मुस्तनद आलिम नहीं हैं, इसलिए उनको मुतकल्लिम के मनसब से हटाकर
उनकी जगह मौलाना नूरुल आइन साहब मिसबाही किस इदारे में? फिलहाल खिदमत कर रहे हैं कहाँ? हाँ, मेरा अपना इदारा है जामिया मसूदिया अजीज़ुल उलूम बहराइच शरीफ। जामिया मसूदिया अजीज़ुल उलूम बहराइच शरीफ यूपी। उनकी जगह पर बहैसियत मुतकल्लिम फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से मुंतखब किए गए। बहैसियत आलिम और मुनाजिर मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ये बता दूं कि शरअ मुताहर के नज़दीक गैर आलिम को वाज़ कहना हराम है। जब उसे वाज़ कहना हराम है, तकरीर करना हराम है, तो मुनाजरा करना बदरजे औला उसके लिए नाजायज़ होगा। दोनों फरीक ने मुस्तनद आलिम को मुतय्यन किया था, मगर 3 घंटे की गुफ्तगू के बाद ये राज खुला अभी नहीं कि कारी साहब में हूँ तो आज मुस्तनद तो मुस्तनद है, आपको फोन करने वाला था लेकिन आलिम दीन ही नहीं है, इसलिए नहीं करवाया। तो उन्होंने हमारा आज 3 घंटा आप सब सब के साथ बेंगलोर आया हूँ। ज़ाय किया। बज़ाहिर इसे ज़ाय करना कहेंगे, मगर हकीकत में एक हकीकत से पर्दा उठा कि जिसको अभी